जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है वालेकुम कि आप सब सलाम। लोग खैर खैरियत से होंगे। In अल्हम्दुलिल्लाह। the last lecture we have learned about the knee joint. We have learned about the different types of surgical procedures related to the soft tissue injuries surrounding the knee joint. We have talked about the anterior cruciate ligament injury. We have talked about the meniscal injuries as well. And we have talked about the surgical procedures we can use for their management and the precautionary measures as well as indications and contraindications. Okay. Today we are going to learn about the ankle joint. We will discuss about the anatomy of the ankle joint, the number of articulations that are involved in the ankle joint, and we will talk about the function of these articulations during uh, talk about the function of these articulations during we will talk about the number of articulations, the function of these articulations during weight-bearing activities, during gait, ठीक है, और we will talk about the degenerative diseases and the number of diseases affecting this joint, ठीक है, this complex joint. So let's start with the ankle joint. The ankle joint actually there are a number of articulations. If we talk about ankle and foot as a whole, we are going to see that there are a number of bones that are taking place and that are involved in ankle as well as in foot. So if we talk about the ankle, the distal tibia and fibula is a part, ठीक है, इसके अलावा there are 7 tarsal bones and 5 metatarsal bones, whereas there are 14 flinges. All these bones are combined to form the hand, and all of these bones are going to form the foot and ankle. ठीक है, so if we talk about the tarsal bones, which are 7 in number, it is actually the talus, the calcaneum, ठीक है, the navicular, and 3 cuboid forms, and 3 cuneiform bones and 1 cuboid bone, ठीक है. So all of these, talus, navicular, calcaneus, cuboid, and 3 cuneiform bones, these are 7 tarsals, and then there are 5 metatarsals which they are attached to the 14 flinges to form the toes, ठीक है. So this is the ankle and the foot, ठीक है. We usually divide the foot into 3 zones. The one is the hind foot, the mid foot, and the forefoot. If we talk about the hind foot, it is usually composed of the talus and the calcaneus, ठीक है. If we talk about the mid foot, it is composed usually it is usually composed of navicular and the cuboid and the cuneiform bones. ठीक है. And if we talk about the forefoot, it is usually composed of the metatarsals and the phalanges. ठीक है. So we are going to divide this zones just to make sure what is happening in the zone. ठीक है. In any of these 3 zones, what is happening in the forefoot, what is happening in the midfoot, and what is happening in the posterior side, the hind foot. ठीक है. So we have divided the foot into different zones. And now we are going to describe the number of movements occurring at the ankle joint. First of all, we are going to describe the movement that is सर going to occur. जी बेटा. लेक्चर नहीं है हमारे पास। नहीं बेटा, अभी लेक्चर नहीं बना हुआ, ठीक है. ये जस्ट मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया हुआ है. इंशाल्लाह ताला वो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा ईमेल पे, ठीक है.
So, movements occurring at the ankle joint, we are going to describe them one by one. The first movement that is going to occur is the sagittal plane movements around the frontal axis. So, sagittal plane movement occurring at the ankle joint is dorsiflexion and plantar flexion. Okay, this movement is essential for your walking, for your normal gait. So, the second movement is the movement that is going to occur in the frontal plane, but around a sagittal axis. This movement is usually the inversion and eversion. Okay, and the next movement is the movement that is going to occur around in a transverse plane, okay, around the vertical axis, that is abduction and adduction. Okay, so there are some differences with the rest of the body. Okay, here the movement that is occurring in the transverse plane, that it is actually abduction and adduction. Okay, and the movement that is going to occur in the frontal plane, it is inversion and eversion. Okay, so these are the movements of isolate movements, joint movements that we have learned. Now, for the ankle joint to function, and there are triplanar motions. Triplanar motions mean all these three movements which we have learned one by one, all these three movements are going to occur simultaneously. So for that purpose, we have two terms. The one is the pronation and the other one is the supination. So if we talk about the pronation, okay, this pronation, this is a combination of three movements. The one is the dorsiflexion, the other one is the abduction, and the third one is the eversion. All these three movements are combined to form the pronation. ठीक है, प्रोनेशन में कौन कौन से थ्री मूवमेंट्स आ जाती हैं? एबडक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड इवर्जन. ठीक है, ये तीनों मूवमेंट्स बनाती हैं आपकी प्रोनेशन को. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गोइंग टू bear the weight on a foot, when you are going to bear the weight on a foot. Let's say this is the right foot and I'm going to step forward, and when you are going to shift the whole of the weight on the right foot, this right foot goes into pronation. So here the ankle is going to move in dorsiflexion, the ankle is going to move in abduction, and the ankle is going to move in eversion. Okay, all these movements occur. Now all these movements, they are going to occur at the in the hind foot zone, in the midfoot zone. What happens in the forefoot? This is actually the same as that of the supination and pronation. The greater toe is going to extend, while the fifth toe, the smaller toes, ठीक है, they are going to flex. ठीक है, so there is a twist. ठीक है, समझ आ गई बात की, जिसमें जो फर्स्ट टो होगा, ठीक है, वो आपका किस में जाएगा? फ्लेक्शन के अंदर जाएगा, और जो आपका ग्रेटर टो है वो फ्लेक्शन में जाएगा, और जो आपका फिफ्थ टो है इट विल गोज इनटू एक्सटेंशन. ठीक हो गया? Sorry, जो फर्स्ट टो है इट विल गोज इनटू एक्सटेंशन, एंड द लास्ट टो इट विल गोज इनटू फ्लेक्शन. Extension, that is actually the dorsiflexion. ठीक है, the greater toe is moving towards the body. ठीक है, while the fifth toe it is moving towards the floor. ठीक है, this is flexion. The fifth toe and the greater toe is moving towards your body. This is dorsiflexion or extension. You can simply say that. ठीक है, so it is a supination twist of the forefoot during pronation of the hind foot and the midfoot. The next triplanar motion, ठीक है, this is the supination. ठीक है, and supination is a combination of three movements. The opposite of the pronation. ठीक है, supination is a combination of ankle plantar flexion. It is a combination of ankle inversion, and it is a combination of ankle adduction. So all these three movements are combined to form a supination. ठीक है, and supination it is usually came into being
when you are going to push your foot, ठीक है, to take another step, ठीक है। जब आपने वेट बेयर करना था तो आपकी कौन सी मूवमेंट हुई, प्रोनेशन की। जब आपने पुश करना है अपने आप को पुश ऑफ फेज में, तो वो आपकी कौन सी मूवमेंट होगी, दैट विल बी द supination movement. The combination of these three movements is plantarflexion, adduction and inversion। ठीक हो गया। This supination, this is the closed pec position, ठीक है, while the pronation is the open pec position। ओपन पैक पोजीशन इज लूज पोजीशन, ठीक है। आप सबको पता है कि जब भी हमने किसी भी जॉइंट को एग्जामिन करना हो तो हम ओपन पैक पोजीशन में करते हैं, और अगर हमने किसी भी जॉइंट को देखना हो कि उसकी कितनी अच्छी स्टेबिलिटी है तो वो हम उसकी क्लोज पैक पोजीशन में चेक करते हैं। ठीक हो गया। स्टेबिलिटी को क्लोज पैक पोजीशन में चेक किया जाता है। वैसे यूजुअली जो हम एग्जामिनेशन के लिए ओपन पैक पोजीशन यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट प्रोनेशन इज ओपन पैक पोजीशन एंड दिस सुपिनेशन, दिस इज अ क्लोज पैक पोजीशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब ईच आर्टिकुलेशन वन बाय वन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द एंकल जॉइंट। The first one is the talocrural joint. Talocrural joint. This talocrural joint is going to form between the talus and the tibia and fibula. The tibia and fibula, they are going to articulate with the talus, with the dome of the talus. So the talus here is a convex articular surface, while the distal tibia and fibula, these are the concave articular surfaces, ठीक है। So you know that what rule is going to apply here. This is actually the convex to concave rule is going to apply. With each physiological movement, the gliding will be opposite to that of the physiological motion, ठीक है। If we talk about characteristics, it is simply a hinge joint. It is a synovial articulation. It has a weak capsule, surrounded by a weak capsule, and is supported by a number of ligaments. On the medial side, there is a deltoid ligament, and on the lateral side, there are lateral ligament complex. ठीक है। अब ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीडियल साइड के ऊपर मीडियल मेलियोलस जो होता है वो ग्रेटर होता है लेंथ में, वेयर एज ऑन द लेटरल साइड इट इज सॉरी, ऑन द मीडियल साइड मीडियल मेलियोलस लेंथ में शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू द लेटरल साइड। लेटरल साइड का मेलियोलस लेंथ में बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कितना नीचे तक जाएगा तो लेटरल मेलियोलस ज्यादा लोअर होता है एज कंपेयर टू द medial malleolus, ठीक है। So on the lateral side there are lateral ligamentous complex, ठीक है। उसमें आपके पास anterior talofibular ligament आ जाता है, ठीक है। उसके आपके पास posterior talofibular ligament आ जाता है और calcaneofibular ligament आ जाता है। ये तीनों ligaments मिलकर आपका lateral ligamentous complex बना रहे हैं। एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट, पोस्टीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट और आपका कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट। कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू दीज टू आर्टिकुलेशंस, दीज टू लिगामेंट्स। ऑन द मीडियल साइड देयर इज अ डेल्टॉइड लिगामेंट, ठीक है। अब ये जो वो कहते हैं डेल्टॉइड लिगामेंट है, ठीक है, इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। इसमें आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, इसके आप में ये जो डेल्टॉइड लिगामेंट है, ठीक है, इसमें टोटल 4 लिगामेंट्स होते हैं जो मिलकर डेल्टॉइड लिगामेंट बनाते हैं, ठीक है। देयर इज एंटीरियर टैलोटिबियल लिगामेंट, ठीक है। देयर इज पोस्टीरियर टैलोटिबियल लिगामेंट, ठीक है। थर्ड आपके पास आ जाता है टिबियो कैल्केनियल लिगामेंट, और फोर्थ आपके पास आ जाता है टिबियो नेविकुलर लिगामेंट। ये चारों लिगामेंट्स मिलकर आपका मीडियल जॉइंट, मीडियल साइड का लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जिसको हम लोग डेल्टॉइड लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। अब यूजुअली अगर आपके इफ देयर इज एन एंकल स्प्रेन, ठीक है, द एंकल स्प्रेन यूजुअली इज ऑफ द लेटरल साइड, ठीक है। मीडियल साइड का यूजुअली एंकल स्प्रेन नहीं होता जब तक कि कोई सीवियर ट्रॉमा या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। नाउ ये यूजुअली हमें एवरीडे एक्टिविटीज में एंकल स्प्रेन होता है, ये लेटरल लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स का होता है,
क्यों? क्योंकि हमारा जो मीडियल मेलियोलस होता है ये हाई साइज में छोटा होता है एज कम्पेयर टू द लेटरल, ठीक है। सो देर इज अ टेंडेंसी कि जब भी फुट मूव करेगा तो वो इन्वर्जन में मूव करेगा, क्योंकि मीडियल साइड का मेलियोलस वहां पर स्मॉलर साइज का है, जबकि जो लेटरल साइड का मेलियोलस है वो लार्जर साइज का है। और अगर आप चाहोगे भी इवर्जन करना तो वो इवर्जन नहीं हो पाएगी, ना डेल्टॉइड लिगामेंट के ऊपर कॉम्प्लेक्स, ना डेल्टॉइड लिगामेंट के ऊपर कोई स्ट्रेस आएगा। क्यों? क्योंकि लेटरल मेलियोलस उस मूवमेंट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। ई वर्जन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है लेटरल साइड का मेलियोलस, जबकि मीडियल साइड का मेलियोलस ऐसा नहीं कर रहा। और आपकी इनवर्जन यूजुअली इसीलिए ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू ई वर्जन, ठीक है। इनवर्जन सबकी ज्यादा है एज कंपेयर टू ई वर्जन, ठीक है। सो दिस इज about the talocrural ligament, ठीक है। At the talocrural ligament, two movements are going to happen. The one is the dorsiflexion and the other one is the plantar flexion, ठीक है। This dorsiflexion, ये जो dorsiflexion है ये close pack position है talocrural joint की, और जो plantar flexion है ये open pack position है, loose pack position है talocrural joint की, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्राइप्लेनर मूवमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक जॉइंट दैट इज द टैलोक्रूरल जॉइंट। इसके लिए जो डॉर्सिफ्लेक्शन है ये इसकी क्लोज पैक पोजीशन है, जो इसके लिए प्लांटर फ्लेक्शन है वो इसकी क्या है? लूज पैक पोजीशन है। सो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू एग्जामिन अ टैलोक्रूरल जॉइंट यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर द प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है, विच इज अ लूज पैक पोजीशन। नाउ वो कहते हैं कि ankle joint will become more vulnerable to injury whenever the foot, whenever the female population is going to wear high heels, because your talocrural joint is going into a loose pec position, ठीक है, which is obviously less stable as compared to the close pec position, ठीक है। जबकि आपका जो मिड फुट और फोर फुट होता है, ये तो मैं हाइंड फुट की हम बात कर रहे हैं ना टैलोक्रोरल जॉइंट की, जबकि जो आपका मिड फुट है और हाइंड फुट है इट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, ठीक है, एज कंपेयर टू द हाइंड फुट विच इज इन लूज पैक पोजिशन, ठीक है। ऑब्वियसली हील में ये पोजिशन होती है, तो यहाँ पर ये जो हाइंड फुट है इट इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, and this midfoot and forefoot it is going to be more stable, ठीक है। this is less stable, loose pec position है। so this difference, ठीक है, will result in more injuries as compared to कि अगर वो भी joint क्या हो जाए? stable हो जाए, dorsiflexion में आ जाए, ठीक है। Now the next joint is the calcaneal joint, the joint which is going to form between the talus and the calcaneum. इसको हम लोग सब टैलर जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। द टैलस एंड द कैल्केनियम। टैलस अपर किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? डिस्टल टिबिया एंड फिब्यूला के साथ। नीचे किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? हील ऑफ फुट के साथ। हील हमारी किसकी होती है? कैल्केनियम की होती है। सो दिस इज अ सब टैलर जॉइंट, ठीक है। If we talk about its articulations, ठीक है, it has almost 3 articulations, ठीक है। There are the one articulation on is on with the anterior facets, the second articulation with the middle facets, and the third articulation is with the posterior facets. So talus and the calcaneum, they articulate with the facets, ठीक है, they do not articulate with directly with each other. They have actually facets that are going to articulate. So what happens, this division, ठीक है, is based on the number of articulations or the number of facet joint on the subtalar joint, ठीक है, within the subtalar joint. Now there is a tarsal canal, ठीक है, a canal that is going to divide these articulations, ठीक है। On the front side of the canal, there are 2 articulations. The one is the anterior and the middle, ठीक है, and on the posterior side, ठीक है, there is a posterior articulation, ठीक है, posterior facet. कैनाल के एंटीरियर साइड के ऊपर क्या है? आपके पास 2 हैं, एंटीरियर
आर्टिकुलेशन है, एंटीरियर फेसेट है और मिडल फेसेट है, जबकि उसकी बैक साइड के ऊपर आपके पास posterior articulation है. So just for a reference कि this canal, the canal, tarsal canal, this is going to divide the articulations into two, ठीक है, on the front side and on the back side, ठीक है. और यही इसी केनाल की प्रेजेंस की वजह से जो फेसेट्स की आर्टिकुलेशंस हैं, जो दो आर्टिकुलेशंस फ्रंट साइड के ऊपर है इनका अपना कैप्सूल है, जो बैक साइड के ऊपर फेसेट की आर्टिकुलेशन है उसका अपना अलग कैप्सूल है, ठीक है. अच्छा जी, सो वो कहते हैं कि व्हाट हैपेंस, ठीक है, व्हाट इज व्हाई दिस सबटैलर जॉइंट इज नेसेसरी, ठीक है. अब वो कहते हैं कि ये जो सबटैलर जॉइंट है दिस इज एक्चुअली यूजफुल एंड प्रोवाइड play a significant role while you are going to bear the weight on the foot, ठीक है. What happens, this joint prevent any rotatory forces to happen when you are going to bear the weight, ठीक है. So if there are no rotatory forces, ठीक है, there is no rotation of the calcaneus on the talus or the talus on the calcaneus, ठीक है, there will be no malalignment, there will be no sacrifice of stability, ठीक है, whenever you are going to bear the weight. But if there is rotation that is going to happen, ठीक है, if there are rotatory forces, ठीक है, it will lead to sacrifice of the stability, ठीक है, and there are more chances of getting an injury at this joint, ठीक है. If we talk about the arthrokinematics, ठीक है, one by one, on the posterior side, ठीक है, केनाल की जो पोस्टीरियर साइड है जहां पे पोस्टीरियर फेसेट था, ठीक है, उसकी जो आर्टिकुलर सरफेस होती है उसमें जो आर्टिकुलर सरफेस होती है टैलस की, दैट इज अ कनकेव, ठीक है, और जो कैल्केनियस की आर्टिकुलर सरफेस होती है दैट इज कन्वेक्स, ठीक है. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन, ठीक है. टैलस इज कनकेव एंड कैल्केनियस इज ऑफ कन्वेक्स. Now, if we talk about the anterior and middle articulation, ठीक है, anterior और middle articulation में जो talus की surface है, that is convex, while जो calcaneus की surface है, that is concave, ठीक है. Obviously, that is opposite to each other. Posterior में talus क्या है, आपके पास concave है और calcaneus क्या है, convex है, ठीक है, concave, convex, ठीक है. और फ्रंट में क्या है, फ्रंट और मिडल आर्टिकुलेशन में टैलस आपकी कन्वेक्स है और कैल्केनियस आपकी कनकेव हो जाती है, ठीक हो गया. नाउ द टैलोनेविकुलर जॉइंट, ठीक है, द जॉइंट दैट इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन द टैलस एंड द नेविकल, ठीक है. बोथ ऑफ दीज आर द एक्चुअली द टार्सल बोन्स, ठीक है. सो दिस जॉइंट, ठीक है, it is also supported by the this joint is going to form between the talus and the navicular bone, ठीक है, and this joint is going to be stabilized with the extension of the number of ligaments, the deltoid ligament on the medial side and the lateral ligament is complex on the lateral side, while there is another ligament that is called the spring लिगामेंट, जिसको हम लोग टैलो नेविकुलर लिगामेंट भी बोलते हैं, ठीक हो गया. सो टैलन नेविकुलर नहीं, सॉरी, कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट बोला जाता है. दिस स्प्रिंग लिगामेंट को कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट बोला जाता है, ठीक है, जो कि इस जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है टैलोनेविकुलर जॉइंट को, ठीक है. सो कहते हैं व्हाट हैपेंस, ठीक है, विद द टैलोनेविकुलर जॉइंट, ठीक है. वो कहते हैं व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बेयर द वेट, ठीक है, ऑन द फुट, this navicular bone, ठीक है, it will start to move forward, ठीक है, start to drop itself, ठीक है,
जैसे ही ये ड्रॉप करेगी, ठीक है, आपकी जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है वो फ्लैटनिंग की तरफ जाएगी, ठीक है, और आप वेट को बेयर कर सकोगे, ठीक है, ड्यूरिंग वेट बेयरिंग, ठीक है। दिस टैलोनेविकुलर जॉइंट, ठीक है, इसमें जो आपकी नेविकुलर है ये प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगी, ठीक है, और स्लाइड जो है इसकी वो होगी इन्वर्जन, ठीक है, मीडियल साइड की तरफ ब्लैक मूव करेगी, ठीक है, ड्यूरिंग वेट बेयरिंग। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसकी नेविकुलर की प्लांटरवर्ड मूवमेंट, प्लांटर फ्लेक्स मूवमेंट की वजह से और मीडियल मूवमेंट की वजह से जो आपका जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है वो फ्लैटन हो जाती है, और जैसे ही आप पुश ऑफ करना शुरू करते हो तो ये दोबारा से नेविकुलर क्या होती है, इट विल मूव डॉर्सली, ठीक है, डॉर्सल फ्लेक्शन में जाएगी, ठीक है, और इसमें लेटरल डायरेक्शन में ग्लाइडिंग होती है, लेटरल डायरेक्शन में भी मूव करती है, जिसकी वजह से दोबारा से मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च डेवलप कर जाती है, ठीक है। सो इस आर्टिकुलेशन का फायदा ये है, ठीक है। If we talk about arthrokinematics, the talus is the convex articular surface while the navicular is the concave articular surface. ठीक है, obviously whenever there are physiological movements at the talonavicular joint, a concave to convex rule is going to apply. Navicular will always glide in the same direction as that of the physiological movement, ठीक है, means if there is dorsiflexion the navicular glides in the dorsal direction, and if there is a plantar flexion the navicular glides in the plantar direction, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ट्रांसफर्स टार्सल जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, ये वो जॉइंट हैं जो कि आपके हिंज और मिड फुट को इन्वॉल्व करते हैं, जो आपके हाइंड एंड मिड फुट को इन्वॉल्व करते हैं या हाइंड एंड मिड फुट को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास दोबारा से हम दो आर्टिकुलेशंस आ जाती हैं, टैलोनेविकुलर भी आ जाती है और कैल्केनियो क्यूबॉइड भी आ जाती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो कैल्केनियो क्यूबॉइड है, ठीक है, दीज आर एक्चुअली जो टैलोनेविकुलर है इसको तो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, हिंज जॉइंट में। कैल्केनियो क्यूबॉइड जो है, कैल्केनियम और क्यूबॉइड के दरमियान जो आर्टिकुलेशन है उसको हम लोग कैल्केनियो क्यूबॉइड कहते हैं। यूजुअली ये जो कैल्केनियो क्यूबॉइड आर्टिकुलेशन है ये सेडल शेप जॉइंट होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं जो कैल्केनियम होती है, ठीक है, ये अगर हम सिर्फ कैल्केनियम की बात करें तो इट इज कन्वेक्स, ठीक है, फ्रॉम डॉर्सल टू प्लांटर डायरेक्शन, ठीक है, या प्लांटर से डॉर्सल डायरेक्शन में इट इज कन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस, एंड फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड इट इज अ कनकेव आर्टिकुलर सरफेस, कैल्केनियम, ठीक है। डॉर्सल से प्लांटर डायरेक्शन में क्या है, कन्वेक्स है, ठीक है, और मीडियल से लेटरल डायरेक्शन में क्या है, कनकेव है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्यूबॉइड की तो वो मीडियल से लेटरल डायरेक्शन में कन्वेक्स है, ठीक है, और डॉर्सल से प्लांटर डायरेक्शन में वो कनकेव है, ठीक है। तो whenever it is going to move in the dorsal or in the plantar direction it will be concave to convex rule, ठीक है, और whenever it is going to move in the sideways direction it will be a convex to concave rule, ठीक हो गया। सेम टू सेम जिस तरीके से हमने फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट की बात की थी कि जो सेटल शेप जॉइंट बनाता है, ठीक है। अच्छा, सो इफ वी टॉक अबाउट सही रिपीट कर दी। अच्छा बेटा, दैट इज अ कैल्केनियो क्यूबॉइड आर्टिकुलेशन, ठीक है। वो कहता है कैल्केनियो क्यूबॉइड आर्टिकुलेशन में जो कैल्केनियस है, ठीक है, इट इज कन्वेक्स, ठीक है, it is convex when it is when you see the calcaneus from dorsal to plantar direction, ठीक है, and when you are going to see the calcaneus from medial to lateral side, ठीक है, it will be concave, ठीक है। So if we talk about the cuboid will be concave when you are talking about from dorsal to plantar direction, and it will be convex when you are talking about medial to lateral direction. So whenever the cuboid is going to move in dorsal and in plantar direction, there will be concave to convex rule,
ठीक है, और whenever it is going to move in sideways, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, it will be convex to concave rule। ठीक है, इसमें डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी ग्लाइडिंग की, और प्लांटर और डॉर्सल डायरेक्शन में ग्लाइडिंग क्या होगी, सेम होगी। ठीक हो गया। सर हमने क्यूबॉइड को लेके सारे मूवमेंट कराए, अगर कैल्केनियम करेंगे तो उसके ऑपोजिट मूवमेंट्स हो जाएंगे। समझिए क्या कह रहे हो बेटा। सर हमने क्यूबॉइड को किया ना, यदि वो डोर्सल टू प्लांटर मूव कर रही है तो वो कनक्लेव टू कनकेव रूल होगा। यस, अगर कैल्केनियम डोर्सल टू प्लांटर मूव कर रही है तो वो कन्वेक्स टू कनकेव। अगर साइडवेज डायरेक्शन में मूव करेगी तो कन्वेक्स टू कनकेव रूल, क्योंकि क्यूबॉइड मूव कर रही होगी और कैल्केनियम जो है वो आपकी स्टेबल है। समझ आई बेटा। साइडवेज डायरेक्शन में ड्यूरिंग इनवर्जन एंड इवर्जन और ड्यूरिंग एबडक्शन और एडक्शन, ठीक है, देयर विल बी कन्वेक्स टू कनकेव रूल एट द calcaneum cuboid articulation, but in dorsal and plantar direction there will be concave to convex rule। ठीक है। ओके सर। Now if we talk about the conditions affecting the ankle joint, ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अ गाउट आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस जिसको आप बोलते हो। सो गाउट इज यूजुअली अफेक्टिंग द फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लैंजियल जॉइंट, ठीक है, नन अदर दिस, ठीक है। जितने भी गाउट में जो आप कह लो कि डेपोजिशन है यूरेट क्रिस्टल्स की, दैट इज यूजुअली एट द फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लैंजियल जॉइंट, ठीक है। So this is one of the most important condition at the ankle joint। And if we talk about the osteoarthritis or a degenerative joint disease, एंकल जॉइंट में डिजेनरेशन बेटा तब स्टार्ट होती है जब एंकल जॉइंट को कोई ट्रॉमा हुआ। जिस तरह नी जॉइंट में या हिप जॉइंट में डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज स्टार्ट होती है, उस तरीके से एंकल जॉइंट में स्टार्ट नहीं होती। एंकल जॉइंट में तभी स्टार्ट होगी व्हेन देयर इज अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और देयर इज अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंजरी टू द एंकल जॉइंट, ठीक है। सो this is a traumatic this degeneration is related to the trauma and this is known as ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। ठीक हो गया। और ऑब्वियसली ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस में वो जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो जॉइंट्स की डिजेनरेशन होगी जो जॉइंट्स आपके ट्रॉमा में इन्वॉल्व थे, ठीक है, जिनकी मेल अलाइनमेंट होगी वही जॉइंट आपके डिजेनरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द rheumatoid arthritis, ठीक है। सो rheumatoid arthritis usually starts with the forefoot, ठीक है। It may involve the midfoot, but it cannot involve the ankle joint। एंकल जॉइंट को ये यूजुअली इन्वॉल्व नहीं करता, यूजुअली आपके फोरफुट को और मिडफुट को ये इन्वॉल्व करता है, ठीक हो गया। सर गाउट किन जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं? गाउट बेटा फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लैंजियल जॉइंट को, ठीक है। ठीक है सर। So there are a number of deformities that are going to occur। The first one is hallux valgus, ठीक है। Now what is hallux valgus? This is actually the greater toe, ठीक है। If we talk about the greater toe बेटा, ठीक है, greater toe में सिंपल एक phalangeal joint होता है, ठीक है। ये दो phalangeal joint नहीं होते, दो interphalangeal joint नहीं होते, एक phalangeal joint होता है। अब वो कहते हैं ग्रेटर टो में क्या होगा, जो इसकी प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है, ठीक है, इट विल मूव टूवर्ड्स द लेटरल डायरेक्शन, ठीक है। वो कहते हैं इस लेटरल डायरेक्शन में, मतलब ये जो साथ में टोज हैं, ठीक है, ये जो आपका प्रॉक्सिमल टो प्रॉक्सिमल टार्सल है, फेलेंक्स सॉरी प्रॉक्सिमल फेलेंक्स है ग्रेटर टो का, ठीक है, इट विल मूव टूवर्ड्स दीज फिंगर्स इन द लेटरल डायरेक्शन। इसकी लेटरल डेविएशन की वजह से क्या होगा कि ये जो मीडियल साइड के ऊपर इसका हेड है, ठीक है, ऑब्वियसली जब एक साइड इस साइड पर मूव करिए तो ये क्या होना शुरू हो जाएगी, मोर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी मीडियल साइड। और इस मीडियल साइड के ऊपर क्या बनना शुरू हो जाते हैं, बनियन बनना शुरू हो जाते हैं, या हम उसको कहते हैं कि इमेच्योर बोन ग्रोथ, ठीक है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फ्रिक्शनल मूवमेंट, ठीक है।
तो दिस इज अ डिफॉर्मिटी दैट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। इट इज इमेच्योर बोन ग्रोथ ऑन द मीडियल साइड, जिसको हम बनियन बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज हेलिक्स वेल्गस, ठीक है। नाउ व्हाट द सेकंड डिफॉर्मिटी इज हेलिक्स रिजिडस, ठीक है। हेलिक्स रिजिडस में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट होता है, ठीक है, ये एक्सटेंशन में नहीं जा सकता, डॉर्सिफ्लेक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है। अब वो कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की जो जॉइंट स्पेस होती है वो कंप्लीटली नैरो डाउन हो जाती है या कंप्लीटली खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट होता है वो आपका बिग एक्सटेंशन में नहीं जा सकता, डॉर्सल फ्लेक्शन में नहीं जा सकता, ठीक है। इसको हम लोग हेलिक्स रिजिडस बोलते हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लाटोस, ठीक है। क्लाटोस में आपके पास क्या आ जाता है कि मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स की जितने भी मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं इनकी हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, और जो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्शन हो जाती है, जिसको हम लोग क्लाटोस बोलते हैं, सेम टू सेम क्लाव फिंगर्स की तरह, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाता है हैमरटो, ठीक है। हैमरटो में क्या होता है कि जो मेटाटार्सोफ्लेंजियल जो मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, इनकी हाइपर एक्सटेंशन ही हो रही है, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन हो रही है, लेकिन जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है उनकी हाइपर एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। अब देखें क्लॉटोस क्या है, सिंपली कि मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, और जो फ्लेंजियल जॉइंट्स हैं, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। जबकि जो हैमर टो है उसमें क्या हो रहा है, ये दोनों सीक्वेंस यही है कि मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट में क्या होगा कि आपकी हाइपर एक्सटेंशन होगी, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स में फ्लेक्शन होगी, और जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स होंगे उनमें क्या हो जाएगी, हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। और ये यूजुअली इन जब इम्बैलेंस आता है इंट्रिंसिक मसल्स का और एक्सट्रिंसिक मसल्स का, ठीक है, तो उस इम्बैलेंस की वजह से वो कहते हैं कि ये डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस होती हैं दोनों, ठीक है, क्लाटोज या हैमरटो, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम बात करें सर्जिकल इंटरवेंशंस की, ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशंस व्हिच वी आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि अर्ली स्टेज की सर्जिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं या फिर लेट स्टेज के सर्जिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अर्ली स्टेज की जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उसमें आपके पास आर्थ्रोस्कोपी आ जाती है, ठीक है। उसमें आपके पास वो कहते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के रिपेयर आ जाते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट में बात की थी ना कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की रिपेयरिंग हो सकती है, जैसे नी जॉइंट में हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज की रिपेयरिंग की थी विद ट्रांसप्लांटेशंस, ठीक है, विद मोजाइक प्लास्टी, ठीक है, विद कॉन्ट्रोल प्लास्टी, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज की रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम लोग साइनोवेक्टमी परफॉर्म कर सकते हैं फॉर रेमेटाइड आर्थराइटिस या फिर सॉफ्ट टिश्यूज की रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो लिगामेंट की रिपेयरिंग कर ली, ठीक है, या कैप्सूल की रिपेयरिंग कर ली, कैप्सूल को टाइटन कर लिया। तो दीज आर सम अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो फॉर लेट स्टेज फॉर लेट स्टेज डिजीज, ठीक है, और लेट जो सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं उनमें आपके पास डायरेक्ट आ जाती हैं आर्थ्रोप्लास्टीज आ जाती हैं, उसमें आपके पास आर्थ्रोडिसिस आ जाता है जिसमें आप कंप्लीटली आर्टिकुलर सरफेसेस को फ्यूज कर देते हो, ठीक है, या फिर ऑस्टियोटमी आ जाती है, ठीक हो गया। सो देयर आर सम डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन द टू। इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन कंडीशंस, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज कंडीशंस और ओवर यूज सिंड्रोम्स अफेक्टिंग द एंकल जॉइंट, ठीक है, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हमारे पास टेंडनाइटिस आ जाता है या टीनोसाइनोवाइटिस आ जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो कहते हैं टेंडनाइटिस क्या है कि व्हेनेवर द टेंडन ड्यू टू रेपिटेटिव यूजेज इट गॉट इन्फ्लेम्ड, ठीक है, और इसमें यूजुअली जो आपका टेंडन इन्वॉल्व होता है दैट इज
एचएलएस टेंडन, ठीक हो गया, जो काफ मसल्स का टेंडन है, ठीक है, इसकी टेंडनाइटिस हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि ऑब्वियसली ये जो काफ मसल का टेंडन है ये किस चीज में यूज होता है, आपके पुश ऑफ फेज में यूज होता है, ठीक है। तो वो तमाम लोग, ठीक है, एज फीमेल्स और मेल्स वो जो बहुत ज्यादा चलते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा रनिंग करते हो, ठीक है, अनइवन सर्फेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा चलते हो अनइवन सर्फेसेस के ऊपर। सेकेंडली जो फीमेल्स हाई हील्स पहनते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, उनमें टेंडनाइटिस के चांसेस होते हैं, ठीक हो गया। ऑब्वियसली जो सिम्टम्स आएंगे उसमें आपके पास क्या आएगा कि पेन आएगी ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एंकल, ठीक है, और यू आर अनएबल टू पुश ऑफ, ठीक है, मोर एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली। ऑब्वियसली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू पुश ऑफ देयर विल बी ए पेन, ठीक है, शॉर्ट पेन दैट विल रिड्यूसेस इट्स रेंज ऑफ मोशन, ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाता है प्लांटर फेशियाइटिस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस जो है वो क्या है, वो है आपकी प्लांटर सरफेस के ऊपर आपके पास एक लिगामेंट होते हैं, ठीक है, एक फेशिया होता है जो कि एक्चुअली एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम द कैल्केनियस, ठीक है, टूवर्ड्स द मेटाटार्सल्स, ठीक है। अब ये जो प्लांटर फेशिया होता है, ठीक है, इट इज एक्चुअली प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द आर्चेस, medial longitudinal arches as well, ठीक है। वो कहते हैं whenever this plantar fascia is going to get inflamed, उसको हम लोग plantar fasciitis बोलते हैं, ठीक हो गया। यूजुअली जो plantar fasciitis की पेन होती है वो हील पे फील होती है आपको, हील पर पेन, वैसे कैल्केनियस की जब स्पर्स बन जाते हैं जिनको हम लोग ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग कैल्केनियल, उसको भी हील पेन, उसकी वजह से भी हील पेन हो सकती है, ठीक है। और हील पेन तब भी हो सकती है जब इफ देयर इज अ प्लांटर फेशियाइटिस, ठीक है। अब वो कहते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस यूजुअली कब होता है, तब होता है जब आपकी प्रोनेशन जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो रही हो, ठीक है, और उसमें जो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है वो फ्लैटन ना हो रही हो, ठीक है, वो आपकी यूजुअली क्या रहे, हाई ही रहे, ठीक है, वो आपकी फ्लैटन ना हो, तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि आपके प्लांटर फेशियाइटिस डेवलप होता है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है शिन स्प्लिंट्स, ठीक है। शिन स्प्लिंट क्या है, सर जी बेटा, सो शिन स्प्लिंट क्या है, ठीक है। शिन स्प्लिंट आपके टिबिया की जो इंटीरियर साइड है, ठीक है, व्हेनेवर जो एंटीरियर टिबियल एंटीरियर टिबिया है दैट इज अ सुपरफिशियल बोन, आप यूजुअली टिबिया को पल्पेट करते तक नीचे तक लेके जा सकते हो, पल्पेट करते हुए एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया को। जो लोअर हाफ है टिबिया का, ठीक है, उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ड्यू टू रनिंग, ड्यू टू वॉकिंग और जॉगिंग, ठीक है, ऑन अ हार्डर सरफेस, ठीक है, तो शिन स्प्लिंट आपका डेवलप होता है, ठीक है। ऐसे तमाम फुटवेयर जो कि उतना अच्छा आपके फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ठीक है, अप टू द बॉडी, ठीक है, वो कहां तक यूजुअली कंसंट्रेट कर देते हैं, आपकी इंटीरियर साइड ऑफ द टिबिया के ऊपर, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है कि जो पेरियोस्टियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, टिबिया की, ठीक है, उसका रप्चर हो जाता है या उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम लोग शिन स्प्लिंट बोलते हैं, ठीक हो गया। वो कहते हैं शिन स्प्लिंट एंटीरियर साइड की भी हो सकती है और पोस्टीरियर साइड की भी हो सकती है। एंटीरियर साइड में वो कहता है कि जो पेन है, ठीक है, वो यूजुअली होती है ओवर यूज की वजह से, टेंडो एचएलएस की, सॉरी, ओवर यूज की वजह से होती है टेंडो एचएलएस की। लेकिन जो पेन होती है वो कहता है कि वो आपकी डॉर्सिफ्लेक्सर्स में होती है, ठीक है, विद पेन, जब भी आप डॉर्सिफ्लेक्स
एक्सटेंशन करना शुरू करोगे, डॉर्सिफ्लेक्शन करना शुरू करोगे, डॉर्सिफ्लेक्शन करना शुरू करोगे एक्टिव, ठीक है, तो तब पेन होगी। और जब आप पैसिव प्लांटर फ्लेक्शन करना शुरू करोगे तो तब पेन होगी, ठीक है। पैसिव प्लांटर फ्लेक्शन मींस व्हेनेवर द प्लांटर फ्लेक्सर्स दे आर गोइंग टू स्ट्रेच, तब पेन होगी। और जब आप एक्टिवली डॉर्सिफ्लेक्सर्स को मूव करोगे तो तब पेन होगी। और अगर इसके ऑपोजिट कर लें कि प्लांटर फ्लेक्सर्स जब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे प्लांटर फ्लेक्शन में, या जब आप एक्टिव प्लांटर फ्लेक्शन कर रहे होगे, तो जब एक्टिव प्लांटर फ्लेक्शन में पेन हो तो वो पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट है। और उसमें क्या होगा कि आपके जो डॉर्सिफ्लेक्सर्स है, जब आप उनको पैसिवली स्ट्रेच करोगे डॉर्सिफ्लेक्सर्स को, तो तब पेन होगी, ठीक है। उसको हम लोग पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट बोलते हैं, ठीक हो गया। नाउ कहते हैं कि जो आपके पास लिगामेंटस इंजरीज हैं, ठीक है, दे आर मोर कॉमन, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द लिगामेंट्स दैट आर यूजुअली अफेक्टेड, तो वो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो लेटरल साइड है, ठीक है, दैट इज मोर वल्नरेबल टू इंजरी, ठीक है, जिसमें आपके पास एंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट आ जाता है, पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट आ जाता है और कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट आ जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। और वो कहते हैं ये जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, इसमें आपके पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। एक डायरेक्ट रिपेयर आ जाता है जिसमें हम लिगामेंट को डायरेक्ट एंड टू एंड जो है वो रिपेयर करते हैं, और ये यूजुअली ओपन सर्जरी परफॉर्म की जाती है इसमें, ठीक है, इसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उसको ओपन सर्जरी को हम लोग बोलते हैं बोस्टन गोल्ड प्रोसीजर, ठीक है, बोस्टन गोल्ड प्रोसीजर, ठीक है। बोस्टन गोल्ड प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर है जिसमें ये डायरेक्ट एंड टू एंड रिपेयर होता है, ठीक हो गया। उसमें वो कहते हैं कि आपके जो लेटरल एस्पेक्ट होता है, ठीक है, उसको रीइंफोर्स किया जाता है, ठीक है, उसको स्टेबलाइज किया जाता है आफ्टर एंड टू एंड रिपेयर, ठीक है, ताकि अगली दफा अगर लेट से इन्वर्जन हो भी प्लांटर फ्लेक्शन के साथ, जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है लेटरल एंकल लिगामेंट की इंजरी का, दैट इज प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन, ठीक है। तो अगर प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन हो भी तो ज्यादा स्ट्रेस इन लिगामेंट्स के ऊपर ना आए, बल्कि उन रीइंफोर्समेंट्स के ऊपर है जो कि प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। कैप्सूल को टाइट कर लिया लेटरल साइड के ऊपर, लेटरल रेटिनेकुलम को टाइट कर लिया, ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो है स्टेबिलिटी वो कहां से आ जाए, बाकी स्ट्रेंट्स से आ जाए, ठीक हो गया। फिर सेकंड जो आपके पास सर्जरी है दैट इज अ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, विद ऑगमेंटेशन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन विद ऑगमेंटेशन है, इसमें क्या होता है, इसमें वो कहते हैं कि हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर टेंडन्स, ठीक है। हम इसमें जो सराउंडिंग के टेंडन्स होते हैं, ठीक है, उनकी मदद लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अब वो कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रोनियस ब्रेवियस को यूजुअली यूज किया जाता है, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट भी ऑन लेटरल साइड के ऊपर होता है और ई वर्जन के तौर पर एक्ट करता है, ई वर्जन के तौर पर एक्ट करता है, होता है लेटरल साइड के ऊपर है, लेकिन इसको किस काम के लिए यूज किया जाता है, फॉर द ऑगमेंटेशन, ठीक है, इसके टेंडन को यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें यूजुअली वो कहता है कि जो इन्वर्जन की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको भी मिनिमाइज किया जाता है ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है, ताकि जो ऑगमेंटेशन प्रोवाइड की है उसको कोई इंजरी ना हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आर्थ्रोस्कोपिक थर्मली असिस्टेड, ठीक है, कैप्सूलर शिफ्ट। अब वो कहते हैं कि आर्थ्रोस्कोपिक जो है कैप्सूलर शिफ्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसमें कैप्सूल को आप टाइटन करते हो, ठीक है, ताकि जो कैप्सूल है, ठीक है, वो एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करे और इन्वर्जन को प्रिवेंट करे, ठीक है, या इन्वर्जन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है।
उसमें वो क्या कहते हैं कि जो जितना भी कैप्सूल है और लिगामेंट्स हैं, ठीक है, इनको रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के थ्रू, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के थ्रू इनको क्या किया जाता है, श्रिंक किया जाता है और टाइट किया जाता है, ऐसे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कैप्सूल को किया जाता है। ठीक हो गया। दिस इज आर्थ्रोस्कोपिक थर्मली असिस्टेड कैप्सुलेशन। This is all about the ankle joint. In the next lecture, we are going to discuss about the vascular issues. ठीक है, we will start the next topic, that is the vascular system. Any questions related to this topic? Sir, excuse me, sir. सर जी बेटा, आपकी आवाज कम, वन बाय वन। जी मरियम बेटा। Sir, plantar fasciitis और tendinitis की पेन को किस तरह डिफर कर सकते हैं हम? टेंडनाइटिस की जो पेन है वो यूजुअली तब होगी जब आपकी जो काफ मसल है, आप काफ मसल को स्क्वीज भी करोगे ना पकड़ के, ठीक है, पल्पेट भी करोगे तो तब भी आपको काफ मसल की पेन होगी टेंडनाइटिस की। वो काफी सीवियर होती है क्योंकि वो टेंडन भी सबसे बड़ा है बॉडी का। अगर वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो इट विल टेक अ मोर लॉन्गर टाइम, ठीक है, टू मैनेज, ठीक है, और उसकी पेन भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सेकेंडली जो प्लांटर फेशिया है, इसकी आपकी जो पेन है वो हील पर होती है, ठीक है, और इसके लिए हम लोग एक टेस्ट को यूज करते हैं जिसको हम लोग विंडलास टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो अगर कहीं जब आप लोग यहाँ पर होगे तो वो फिर करके दिखाऊंगा या परफॉर्म किया जाएगा ताकि आप लोगों को पता चले। एक्चुअली पेन टेंडो एचएलएस की, ठीक है, वो तो सिंपली आप स्ट्रेच करोगे टेंडो एचएलएस को तब भी पेन होगी, जब वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब भी पेन होगी, ठीक है, सही है। और उसकी इंसर्शन पर पेन की बात है, उसकी इंसर्शन से पहले पेन होती है टेंडो एचएलएस की, ठीक है, जस्ट एट द एंकल ज्वाइंट, ठीक है। लेकिन जो आपकी प्लांटर फेशिया की पेन है दैट इज ऑन द हील ऑफ द फुट, ठीक है, हील पर जो पेन फील हो रही है, और ये यूजुअली मीडियल साइड के ऊपर होती है, ठीक है, हील पर भी आती है, हील पर पेन फिर स्पर्स की भी आती है, ठीक है। और वो स्पर्स की जो पेन होती है वो यूजुअली हम उनमें देखते हैं जो कि ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, मतलब 14 45 प्लस उनमें हील स्पर्स बने हो सकते हैं, ठीक है। प्लांटर फेशियाइटिस यूजुअली जितने इंडिविजुअल्स जो बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है, और मैल अलाइंड रखते हैं, उनकी वजह, उस वजह से प्लांटर फेशिया टाइप हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बात की, जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है जब वो फ्लैटन ना हो सके, ठीक है, ड्यूरिंग वेट बेयरिंग, तो वो आपका प्लांटर फेशिया को टाइट कर देगा। ठीक है सर। सर, अगर डायग्नोस हो जाए कि पर्सन को प्लांटर फेशियाइटिस है, तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको मैनेज करने के लिए बेटा सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन यूज की जाती हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी यूज की जाती है, ठीक है। आप वेक्स थेरेपी यूज, हॉट वेक्स थेरेपी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक लेकिन है जो सर, अगर टाइम ज्यादा हो गया। हाँ जी, जो क्रॉनिक है उनके लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, उसके प्लांटर फेशिया को सर्जिकली रिलैक्स किया जाता है, इलोंगेट किया जाता है, ठीक है। जी और सर, उसके लिए वो ये ज्यादा सर्जरी जी जी, सर, अगर ये सर्जरी कितना ड्यूरेशन हो जाए तो तब परफॉर्म कर सकते, मतलब एक कितना, पेशेंट है उसको 10 साल हो गए। हाँ हो सकती है, क्रॉनिक केसेस के लिए है ही सर्जरी, सर्जरी, ठीक है। सर क्रॉनिक पेशेंट्स स्टीरॉयडल इंजेक्शंस भी तो सकते हैं ना? दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप स्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद टेम्पररी रिलीफ है 6 महीनों का, उसके बाद फौरन दोबारा हो जाएगा, ठीक है। और वो फिर इट विल बी मोर सिवियर, ठीक है। 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 मंथ्स वैसे तो चलते हैं, लेकिन वो 6 मंथ्स तक का कहते हैं। थैंक यू सर। आपने फाइनल के लिए कब? क्या कह रहे हो बेटा?
सर आपने फाइनल के लिए कौन से लेक्चर्स एक्सक्लूड किए हैं? कोई भी नहीं किया एक्सक्लूड। सर सर आपने सारे कहा था कर ना रहे कि आप कर देंगे। सर बेटा फिर कर सारे दें एक्सक्लूड। अच्छा सर मेरी अब तक बात लेक्चर भी खत्म नहीं तो ऐसे तो सर अब बहुत बर्डन हमारा हो जाएगा, फाइनल भी सारे आ गया लेक्चर 1 कैसे हम को। प्रिपेयर करेंगे? मतलब मेरा पेपर भी खत्म नहीं हुआ। फाइनल आ गया अभी तक लेक्चर नहीं हो रहे हैं। बेटा मेरी बात 10 दिन सुने। फाइनल में है सर और अभी तक लेक्चर कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। बेटा लेक्चर तो ऑब्वियसली जब जैसे जैसे आपने हम लोग ने पढ़ना वैसे ही होना है ना। ये सर थेरापेटिक्स सर मेरी बात इतने दिन में लेक्चर कंप्लीट हो सर जाते हैं इतने ना। दिन बेटा मैं आप मेरी बात सुने ना। अगर मैंने एक नी जॉइंट के ऊपर 3 लेक्चर पढ़ाए हैं तो मैं वो एक लेक्चर पढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली उस चीज का तो नहीं ना फायदा। जब आपको अगर आप थेरापेटिक्स इज इम्पोर्टेंट। आप ये ना समझेंगे कि आप 1-1.5 महीना पहले फारिग हो जाएंगे तो हम लोग आप लोग प्रिपेयर वो करने की तैयारी तैयारी तो ऑब्वियसली यूजुअली आप लोग पेपर के वक्त ही करते हैं ना। ठीक है, एक हफ्ता पहले आप लोगों ने फ्री हो जाना है। ये एक वीक है, ठीक है, दिस इज ट्यूसडे, ठीक है, इस वीक में आपका खत्म हो जाएगा, थेरेपेटिक्स खत्म हो जाएगी। सर स्पाइन से पहले वाले लेक्चर्स निकाल दें प्लीज। सर सिलेबस कम कर दें। सर थोड़ा तो स्पाइन से हमें भी अब मेरी बात सुनने स्पाइन से पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें आपका जो होगा वो 20% इंक्लूडेड होगा सिर्फ, ठीक है, और बाकी जो 80% होगा वो आपके रीजन्स में से होगा, ठीक है, स्पाइन, एल्बो, रिस्ट, ठीक है, और हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, ठीक है। सर सारा ही सर होगा। 20% भी हुआ तो फिर भी एक तो हमें प्रिपरेशन में तो से करनी कोई पड़ेगी ना। सर काइंडली आप वो वाले एक्सक्लूड कर दें सर। हमारी बाकी सस्पेंड भी इतनी ज़्यादा चल रही हैं तो वो हम 25 26 तक कंप्लीट करेंगे, फिर हमने उसके बाद उसकी सर प्रिपरेशन फर्स्ट करनी को है। हमारा फाइनल की उन्होंने डेट शीट अनाउंस की हुई है और हमारा 29 और सर 31 जब को 27-28 तक हमारी वाइवा असेसमेंट सर चल रही है अभी। तकरीबन सारे टीचर्स ने थोड़े थोड़े लेक्चर्स कम किए, आप भी कर दें प्लीज सर। सारे टीचर्स ये कहते हैं कि हम वाइवा तक जितने हमने के बाद तकरीबन सबने किया, तो आप भी कर दें प्लीज। अच्छा यस सर कर नेक्स्ट दूंगी। टाइम इसके ऊपर बात करेंगे लास्ट लेक्चर में। और अभी तक बेटा डेट शीट फाइनलाइज नहीं हुई, अभी तक मुझे सर नहीं, आप लोगों को कैसे पता है? सर हमें जो डेट शीट आई है हमें सबने टीचर्स ने कहा है उसी के अकॉर्डिंग ही होना है। बेटा वो फाइनल तो है ही नहीं कोई डेट शीट अभी तक। एक्सक्यूज मी सर सर। इमरान की तरफ से डेट शीट सर आई, हमें आपने तो क्विज भी दोबारा डेट हमारा शीट लेना आई था। है, फर्स्ट को आपका फर्स्ट को पेपर है। पेपर नहीं है। सर काइंडली मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दें। जी सायरा बेटा। सर जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि जो सुपरफिशियल अल्सर्स होते हैं उसके लिए हम कौन कौन सी मोडेलिटी यूज़ कर सकते हैं? एक तो अल्ट्रासाउंड है और एक अल्ट्रा वायलेट है, बट मुझे कंफर्म नहीं है, काइंडली कंफर्म कर दें। सुपरफिशियल स्विचेस के लिए, सर सुपरफिशियल अल्सर्स के लिए। सुपरफिशियल अल्सर्स के लिए यूजुअली हम लोग यही यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट ही करते हैं यूज। और अल्सर्स को सर जो कंटेमिनेशन से बचाने के लिए हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज ही यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। अल्ट्रासाउंड का काम होता है टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। यस सर। सर तो सर अल्ट्रावायलेट हम के डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड नहीं एप्लीकेशन यूज़ क्या होंगे? करेंगे, अल्ट्रा वायलेट ही यूज़ करेंगे। हाँ जी, गोल डिफरेंट है ना बेटा, कंटेमिनेशन से बचाना है, ठीक है ना। यस सर। अल्सर्स को, अल्सर जब कंटेमिनेट नहीं होते तो तब हील होते हैं, जितना वो साफ रहेंगे उतना वो हील होंगे, ठीक है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो सर स्पोर्ट्स के बच्चे जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, कहते हैं कि आपने फर्स्ट 35 स्टूडेंट्स का वाइवा रखा है सर आज शाम को। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट 35 का नहीं, लास्ट 35 का आज वाइवा है। अच्छा, जो फर्स्ट 35 है उनका 23rd को है। उनका सर पीड्स का वाइवा था ना कल, तो आपने बोला था उनको लास्ट क्लास में कि आप 23rd को दे अच्छा, दें। तो अब्दुल्ला वो आप मैसेज कर दो, ठीक है। मुझे ये नहीं पता था कि ये फर्स्ट 35 वाले मेरे से बात कर रहे हैं कि लास्ट 35 वाले। मेरे लास्ट से 35 का सर आज वाइवा है। मेरे से खुशबू ने बात की थी तो मैंने खुशबू को कह दिया था कि ठीक है।
सर सही वो है। ऐसे फर्स्ट मैं अब ये मैसेज कन्वे कर दूं कि आज लास्ट 35 यानी कि जे से नेक्स्ट वालों का वाइवा है, जे तक नहीं वाइवा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, मैं कन्वे कर देता हूँ। मतलब आप कह रहे हो 36 से ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं, ठीक है सर, 35 प्लस 35, ठीक है वो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके एक्सक्यूज ओके मी सर। बच्चों। जी एक्सक्यूज सर मी बेटा, हमारा सर। फिर फर्स्ट को पेपर नहीं है। बेटा वन सर बाय वन। उमर बेटा आप क्या कह रहे हो? सर अल्ट्रा मैं ये वायलेट पूछ जो है उसकी एप्लीकेशन क्या होंगी अगर हम उसको रिकेट्स के लिए अप्लाई करें तो? एक मिनट बेटा, मुझे ना आप लोगों की एक मिनट, वन बाय वन, एक मिनट। उमर बेटा आप क्या कह रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ हमारा फर्स्ट को फिर एग्जाम है थेरा का कि नहीं। बेटा मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, अभी फाइनल डेट शीट आई नहीं। फाइनल डेट शीट वो होती है जो यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी, ठीक है? अभी किसी भी सर डेट हमें शीट यूनिवर्सिटी नहीं भेजी है। बेटा यूनिवर्सिटी ने सर किस अफनान ने। डिपार्टमेंट है? सर अफनान की बेटा तरफ से ऐसी मेल कोई आई हुई है सर। बेटा ऐसी कोई भी डेट शीट अभी नहीं आई, ठीक है? इट सर इज नॉट अ फाइनलाइज्ड डेट शीट। डेट शीट जो आती है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी, वो यूनिवर्सिटी को आपने फॉलो करना है, ठीक है? सर वो 10 सर अगर फर्स्ट को पेपर हुआ तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज शुरू वाले लेक्चर्स कम कर दीजिएगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है। वो देखेंगे। अच्छा, सैयद मोहम्मद अरशद, जी बेटा आप सर क्या मेरा कह रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम एक पर्सन है उसको रिकेट्स है और उसके लिए हमने अल्ट्रा वायलेट यूज करनी है तो उसकी एप्लीकेशन क्या होंगी? अल्ट्रा वायलेट रिकेट्स के लिए यस सर। उसकी क्या होगी, रिकमेंडेशन क्या होगी? यस सर, मतलब उसको अप्लाई कैसे सर करेंगे? मेथड ऑफ एप्लीकेशन पूछना है। रिकेट्स में तो अल्ट्रा वायलेट का बेटा कोई काम नहीं है। सर बुक में तो अल्ट्रा वायलेट ही लिखा हुआ है। अल्ट्रा वायलेट लिखा हुआ है कि जी आप, अच्छा वो अल्ट्रा वायलेट रेस विटामिन डी की उसको करने के लिए, अच्छा सही। हाँ, जी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेस दे सकते हैं, और वो जनरल बॉडी के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि अगर नीज के ऊपर रिकेट्स हैं तो आपने नीज के ऊपर ही अप्लाई करनी है। आप बॉडी में कहीं पर भी वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? उसमें जरूरी ये होता है कि ज्यादा एरिया कवर होना चाहिए, ग्रेटर सरफेस एरिया कवर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्किन के नीचे विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है? एक्टिवेशन के लिए अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए होती है विटामिन डी की, और जब विटामिन डी एक्टिवेट होता है तब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। तो रिकेट्स तब होता है जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो विटामिन डी जैसे जैसे एक्टिवेट होता जाता है वैसे वैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब होता जाता है। जी बेटा। सर, इसके लिए डिस्टेंस कितना रखना होगा उसका अल्ट्रा वायलेट का और बॉडी सरफेस का? बेटा ये तो आपको जो इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ाते हैं उनको उनको बताओ। सर उसमें प्रॉपर ये नहीं लिखा हुआ इसलिए हमें बड़ी मुश्किल हो रही है इसमें। वो इलेक्ट्रोथेरेपी वाले ही रिसोर्स पर्सन बता सकते हैं, ठीक है? ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर आपने क्विज का कहा था, रीटेक लेंगे आप या बेस्ट वन चूज करेंगे? बेटा अभी आप ये शुक्र करें कि हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए, ठीक है? और आप लोगों को इतना टाइम मिल जाए कि आप लोग फाइनल की प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है? मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मेरे पास अगर टाइम मिला तो आई विल कंडक्ट इट, अदरवाइज आई विल नॉट टेक इट, ठीक है? टाइम ही नहीं है, मैनेज ही नहीं हो सकता। सो प्रिपेयर फॉर योर फाइनल्स, ठीक है? फाइनल्स आर इम्पोर्टेंट, फाइनल्स के लिए प्रिपरेशन करें अच्छी सी, ठीक है? ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।